आपको किसको अच्छा नहीं लगता हम अच्छे दिखें, हम अच्छे अपने आप को रिप्रेजेंट करें, है कि नहीं नैन्सी मैम? हम लोग सभी चाहते हैं कि हम लोग अच्छे दिखें, है ना, अच्छे से बोलें, किस तरह हमारी तारीफ करें, हम भी अच्छे लगे। Exactly. We all want to listen our praise. No, actually we love to be praised. Actually. So अभी जो आपका क्लास है ना, वो बहुत अमेजिंग क्लास होने वाला है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी, ऑब्वियसली आपका जो मतलब अपीयरेंस है उसको हम कितना अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से बोल सकते हैं, क्या हमारा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। तो इसके लिए आप अभी हमारा नेक्स्ट सेशन में बहुत ही टैलेंटेड हमारी प्रिया मैम आने वाली हैं और आप लोग सभी को बताएंगी वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत फोकस करिएगा, क्योंकि ये सब चीजें आपको आगे बहुत काम देने वाली है। सो आर यू एग्री विथ मी नैन्सी मैम? Sambandata along with Priya, the most talented, our beloved Amrita ma'am also joining. You know it? Okay, yes. Actually, sorry for missing her name. Actually, I'm so sorry. Our the very talented, our guardian, our mentor, our very beloved Amrita ma'am. We welcome you, ma'am, to here. Actually, हम लोग बहुत दिन से अमृता मैम से मिले नहीं हैं, और इस सेशन के थ्रू एटलीस्ट हम उनसे मिलेंगे, उनको सुन पाएंगे. So give a big hand for Amrita ma'am and Priya ma'am. Welcome, Amrita and Priya. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, the most. Good morning, ma'am. 1.5 years, kids were. Good morning, dear. Good morning, dear. Thank you, ma'am. Good morning. Away from the guidance from the teachers, students might have forgot many things. They may the small kids have not learned also, because and knowing that the grade 2, 3 students, they are not knowing how to sit even in the class also, because they have not attended last year also in the class. They lost the connection. So this will be a wonderful session. Both of you can make them understand that what is personality and why it is so important in our life. How we have been in future, they need to work in the multinational companies. Many may be dreaming now. Many wanted to be an IAS. Many wanted to be. They have to face the interviews and all. So where the knowledge is not, always not to help us. Apart from knowledge, many things they have to learn. That will be. Yes, ma'am. Carry on. Take it. Over to you. Yes. Amrita and Priya. Thank you. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Welcome to the Confidence Building and Personality Development Program. How are you, Priya? I'm fine, ma'am. Feeling good. It's a great day. Everything is so positive today. Yeah. It's a beautiful morning indeed. And to see that for the last 1 year, we have been locked up in our homes. Isn't it, Priya? Yes, ma'am. And life एकदम सिमट सी गई है, और अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं तो हमारे बच्चे अफेक्टेड हैं, और वो स्कूल नहीं जा सकते हैं, शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ खेल नहीं सकते हैं, और घूमने फिरने बाहर नहीं जा सकते, हम उन्हें मॉल नहीं ले जा सकते, रेस्टोरेंट नहीं ले जा सकते हैं, तो बचपन भी बिल्कुल सिमट सी गई है ना। तो इस चैलेंजिंग टाइम को एक कॉन्करिंग टाइम बनाना है, एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक सर, मैम, मैनेजमेंट एंड टीचर्स ऑफ KGIS हु थॉट कि इतने सीमित रिसोर्सेज जो आज हमें हैं लॉकडाउन के कारण, इस सीमित रिसोर्सेज में भी कैसे बच्चों को हम दे पाए जो वो मिस कर रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द मैनेजमेंट, सर एंड मैम ऑफ KGIS। नाउ अगर हम बच्चों की बात करें तो वो दिन भर क्या करते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, ज्यादा टाइम मोबाइल पे, टीवी पे रहते हैं, और वी कैन नॉट ब्लेम देम आल्सो, इजंट इट प्रिया? बिकॉज उनके पास they also feel trapped in so long they are inside the premises of their houses. That is why they spend so much time. But we have to find a solution. We are here to suggest them a solution.
Yes, definitely, definitely. So, to begin with, इस चैलेंजिंग टाइम को कैसे हम कॉन्करिंग टाइम बनाएं, इसे एक विनिंग टाइम बनाएं. टू बिगिन विथ, लेट्स एम्पावर आवरसेल्व्स. और कैसे एम्पावर करेंगे? थ्रू अ स्मॉल एक्सरसाइज ऑफ मेडिटेशन. I request everyone to kindly close their eyes. Please close your eyes and imagine a light in between your eyebrows. उसे अपने बंद आंखों से देखिए और उसकी आभा पूरे चेहरे पे फील कीजिए. उस आभा को अपने पूरे शरीर में फील कीजिए. Become aware of your surrounding. Become aware of your breath. अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए. Breathe in, breathe out. Slowly breathe in, slowly breathe out. Your focus should be on your breath. Now, imagine yourself 20 years from now. आप अपने आप को देखिए, आज से 20 साल बाद आप कहाँ हैं? क्या सिचुएशन है? क्या सराउंडिंग है? क्या हो रहा है? आप कहाँ हैं? किस पोस्ट पे है? क्या पोजीशन है? Just live that moment. Love that moment and live that moment. Now slowly come back. Become aware of your surrounding. Focus on your breath. Thank God for today, for keeping us safe today. And also thank God for the dream that you have just seen. Ask God's blessing for making that dream into a reality. Now, slowly open your eyes. Become aware of yourself. Become aware of your surrounding. कैसा लगा? Did you feel happy? Did you feel glad? You can write down in the comments to let us know if you feel like so. Now take a paper and a pen. Write down what did you see in your dream. Write any 3 things that you remember of your dream. Maybe you can write that you were an engineer, you were very happy, your parents were very happy, you were very rich, you had a big car. Whatever you saw in your dream, write down any 3 things that you remember. Now, also write down 5 steps that you will take today to make that dream into a reality. For example, अगर आपने सपना देखा है कि आप एक इंजीनियर है, तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? सबसे पहले होगा कि आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे और मैथ्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दोगे, है ना? और आप ये भी मतलब इसी तरह से 5 कोर्स ऑफ एक्शन आप लिखो जो आपकी ड्रीम को एक रियलिटी बनाएगी. प्लीज राइट. Written? Now, after this session, please write down in a beautiful handwriting and place it somewhere. Maybe you can stick it in your room also. You can either stick it or you keep it in your diary, wherever you feel like, where you will see it every day. Read it and imagine it, envision it. जैसे हम अपने पौधे को सींचते हैं एवरी डे, है ना, पानी डालते हैं और धीरे धीरे उसे ग्रो करते देखते हैं, उसी तरह से हमें अपने ये सपने को भी सींचना है. एवरी डे उसे पढ़ना है और उसे अपने इमेजिनेशन में लाना है और अपने आप को बोलना है, आई कैन, आई विल, आई एम. फॉर एग्जाम्पल, आपने इंजीनियर बनने का सपना देखा है तो बोलो, आई कैन बिकम एन इंजीनियर,
I will become an engineer. I am an engineer. Every day you have to envision it, you have to imagine it, and you have to make it into a reality with each passing day. ये तो एक बात हुई कि हम इसे इमेजिन करेंगे, हम इसे विजुअलाइज करेंगे, हम इसे सपनों में रोज दिन इसे हकीकत बनते हुए देखेंगे. एंड बिलीव मी माय फ्रेंड्स, अगर हम विजुअलाइज करते हैं तो हमारे एक्शंस भी उसी हिसाब से एवरी डे होते चले जाते हैं. बिलीव मी माय फ्रेंड्स, विजुअलाइजेशन हैज अ स्ट्रॉन्ग पावर. इट अफेक्ट्स स्लोली हमारे कोर्स ऑफ एक्शन, हमारी हैबिट्स, हमारे एक्शंस उस तरह से बदलते चले जाएंगे. ठीक है, ये तो एक बात हुई कि हमें इसे रोज दिन सीखना है, लेकिन हमें उसके साथ हमारे एक्शंस में भी परिवर्तन लाना है. तो एक्शंस में कैसे परिवर्तन लाएंगे? हम उसे धीरे धीरे अपने एक्शंस को डिसिप्लिन करते जाएंगे, अपने आप को डिसिप्लिन करते जाएंगे. एंड माय फ्रेंड्स, nothing has a stronger power than leading a disciplined life. So let me share with you a small PPT that I have prepared for you. I hope you can see it. Now, Priya, is my PPT visible? Not now, ma'am. Okay, fine. Okay. Sharik sir, can you enable the screen sharing? Yes, sure, ma'am. Yeah, thank you, Sharik sir. Whatever you said, ma'am, was so accurate that Yeah. meditation. Can do it now, ma'am. Okay, sir. Okay. Is it visible now, Priya? Yes, ma'am, I can see clearly. Yeah. Now, how to make ourselves disciplined? The first step is make a routine for ourselves and follow it religiously. Now, how do we follow it religiously? Meaning एकदम बना लेंगे रूटीन कि इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे टीवी देखना है, इतने बजे खेलना, सभी चीज का उसमें टाइम देंगे. मोबाइल गेम का भी टाइम देंगे, सिंचैन को देखने का भी टाइम देंगे, पढ़ने का भी टाइम देंगे, खेलने का भी टाइम देंगे और सोने का भी टाइम देंगे. देखो, एक बार हम जब रूटीन बनाते हैं तो हमारा सारा एक्शन उसके चारों ओर घूमने लगता है. एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लीडिंग अ डिसिप्लिन्ड लाइफ. We have to get up with the sun, with the rising sun. Now it is very important. हमने देखा है कि हमारे कल्चर में सन का बहुत महत्व है. जैसे छठ भी हम करते हैं तो it revolves around the sun. So अगर हमें, if we have to make it big in our life, then we have to get up early with the sun, see it rise and shine, so that we also rise and shine in our life, right? So second is we have to get up early with the sun and say hello, good morning to the sun. We have to exercise enough. We have to sweat. We have to take out the toxins from our body so that we become fit. जंग जीतना है ना भाई, मामूली बात नहीं है, इसलिए हमें अपने आप को रेडी करना होगा वो जंग जीतने के लिए. So we have to exercise. Studies shows that even if you are exercising 7 minutes every day, it will help. It will definitely help. And believe me, exercise has a power to make our brains work faster. We have to eat healthy. अच्छा खाएंगे तभी तो एनर्जी मिलेगी, शक्ति मिलेगी, ताकि हम पूरे दिन फिट रहे और अपने जंग में आगे बढ़ते चले. ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप चिप्स मत खाओ या फास्ट फूड बिल्कुल छोड़ दो, है ना, वो भी खाएंगे, बीच बीच में खाएंगे, लेकिन जिस दिन खाएंगे तो वील मेक अप. एक ग्लास गर्म, उसके थोड़ी देर बाद एक ग्लास गर्म पानी पी लेंगे, थोड़ा सा और एक्सरसाइज कर लेंगे, ताकि वो जो टॉक्सिन है हमारे बॉडी से वो पूरी तरह से निकल जाए. We have to control our screen time. You know, the biggest energy waster
is our screen time. ये मोबाइल है, टीवी है, they are very useful, but it wastes our energy also if we spend a lot of time on it. तो हमें अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना है. और बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल को लेके अपने साथ बेड पे चले जाते हैं और मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं. That is a very bad habit and we have to forego of that habit. देख लो, उसे रख दो, फिर then say goodbye to everyone, go to bed. हमें confidence radiate करना है. If we have to make a mark for ourselves, we have to radiate confidence. हमारा presence कैसा होना चाहिए? 100 watt का presence होना चाहिए. So 100 watt का presence feel कराने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले है smile. हमें smile दिन भर, that smile should be on our face. Priya ma'am will shortly tell us about the body language, but let me tell you, the best body language is smile. And believe me, it increases our face value also. हमारा चेहरा अच्छा लगने लगता है, सुंदर दिखने लगता है उस स्माइल की वजह से. इसलिए keep on smiling. The second is make eye contact. जिससे भी हम बात कर रहे हैं, हमें eye contact बना के बात करना है. अब eye contact बनाने का ये मतलब नहीं है कि हम घूरने लग जाए, स्टेयर करने लग जाए, सामने वाले को awkward feel करा दे. नहीं, we have to make others feel special through our eye contact. अपनी सुंदरता को आंखों से बाहर लाना है और सामने वाले को स्पेशल फील कराना है. आगे वाले से कनेक्ट करो ना अपनी आंखों से. That is a very beautiful bonding. Third is let go. Don't hold grudges. कई बार हम सोचते रहते हैं, उसने मुझे ऐसे कह दिया, मेरी मम्मी ने मुझे डांट दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी मुझे डांटी, मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसे किया, मेरी टीचर ने मेरे साथ वैसे किया. नहीं, grudges hold नहीं करना. We have to let it go. ठीक है, अपने आप को बोलना हो गया ना, he is also a human being, she is also a human being. ठीक है, चलो होता है, चलते रहता है. So we have to be happy, we have to be we have to be light, we have to appreciate others. That is a very beautiful art. We have to make others feel cherished. See, everyone in our lives, सब कोई मेहनत करता है अपने अपने हिसाब से. सभी मेहनत करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मेहनत को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं समझता. सब कोई कंप्लेन करते रहता है, तुमने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया. सो एवरीवन इज फीलिंग दैट, एवरीवन इज थका हुआ इन देयर लाइफ. तो उस थकावट को हम दूर कर सकते हैं बाय आवर स्पेशल वर्ड्स ऑफ एप्रिशिएशन. लास्ट वीक वी वर गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक, मी एंड माय हस्बैंड, एंड वी सॉ अ गार्डनर जो बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत दुखी था. फिर हम वहां से पास करके चले गए. व्हेन वी केम बैक, दैट टाइम आल्सो द गार्डनर, वो बहुत ही दुखी था, काम कर रहा था. माय हस्बैंड जस्ट सेड अ फ्यू वर्ड्स टू हिम कि आप कितना मेहनत करते हैं. एंड बिलीव मी माय फ्रेंड्स, दोज वर्ड्स वर सफिशिएंट टू मेक दैट पर्सन हैप्पी. वो इतना खुश हो गया और दौड़ दौड़ के काम करने लगा. सो एवरीवन वांट्स दोज वर्ड्स ऑफ एप्रिशिएशन. जब सभी कोई चाहते हैं तो हम क्यों ना हम अप्रिशिएट, आगे बढ़ के अप्रिशिएट करें. इट विल वर्क वंडर्स ऑन द मोरल ऑफ अदर्स. गिव योर बेस्ट. जो अपना पूरा लगा दे, जो भी काम हमें मिला है उसे करने में हम पूरी मेहनत करें, अपना जी जान लगा के उसे पूरा करें. अगर सोचो, मैंने ये पढ़ा था कहीं कि एक बंदे को रोड पे झाड़ू लगाने का काम मिला था. वो पहले तो बहुत दुखी हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं इतना अच्छा करूं, और सही में वो इतना, मतलब इस तरह से काम करने लग गया मानो कि ऊपर से जब एंजल्स भी जा रही हो तो वो रुक के देखे कि कौन बंदा है जो इतनी खूबसूरती से जिसने रोड साफ किया है. तो हमारा काम इतना सुंदर होना चाहिए, इतनी खूबसूरती से हम कोई काम करें कि ऊपर से जब एंजल्स भी गुजरे तो रुक के देखे कि भाई इससे बढ़िया काम कौन है, वो बंदा जो इतनी खूबसूरती से वो काम किया है. सो गिव योर बेस्ट एंड इट विल क्रिएट अ बेटर टुमारो. इम्प्रूव योर सेंस ऑफ ह्यूमर. खूब हंसो, खूब हंसाओ. सुबह उठ के 2-3 जोक्स पढ़ लो और जहां भी जाओ वो जोक्स बोलो, दूसरों को, खुद भी हंसो, दूसरों को भी हंसाओ, माहौल हल्का कर लो, है ना. एंड इट विल रियली वर्क वंडर्स फॉर यू. लिसन
carefully, listen closely. Now, everyone has a story to tell. सभी कोई अपनी बात बोलना चाहता है कि मेरा आज दिन ऐसा बीता, मैंने ये खाया, मैंने वो पढ़ा, मैंने ये देखा. Everyone wants to tell. So shouldn't we be the ones to listen? Isn't it? If we have to make a mark for ourselves, if we have to stand out, then inculcate this habit of listening to others. कई बार हम देखते हैं कि लोग बहुत दुखी हैं. They don't look for solution. They look for a shoulder. They look for an ear to listen. So why don't we become that person to listen? Right? So from today, we will inculcate this habit of listening carefully to others. Enrich yourself. अपने आप को ज्ञानवर्धक बनाना है, knowledgeable बनाना है ना? दिन भर सिंचाई नहीं देखना है. क्या करना है? बीच बीच में टीवी भी देखेंगे, टीवी में हम न्यूज भी देखेंगे, है ना? और डिस्कवरी चैनल भी देखेंगे. पढ़ने की हैबिट, आजकल ये हैबिट छूटते जा रहा है. रीड करोगे तभी पता चलेगा. योर इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल quotient will widen. So it is very important that you read. अपने आप को knowledgeable बनाओ, ज्ञानवर्धक बनाओ. Understand yourself, very important. अपने आप को समझना है, अपने आप को बोलना है कि जो मैं फील कर रहा हूँ वो नॉर्मल है. इट इज ओके, है ना? अपने आप को ये विश्वास दिलाना कि इट इज ओके. ठीक है, गलती हो गई है, लेकिन आगे से मैं ये गलती नहीं करूंगा. ये काम अच्छे से नहीं हुआ, ठीक है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ अब, लेकिन आगे से मैं इसमें अपना जी जान लगा दूंगा. अपने आप को ये हौसला देना. अपने आप, वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स आवरसेल्फ. Do you remember आमिर खान्स फिल्म 3 Idiot? वो क्या बोलता था? All is well, है ना? तो यही चीज हमें भी अपने आप को बोलना है कि सब ठीक है ना, सब अच्छा है, सब ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा. ये हमें हौसला देगा. Have gratitude. Thank God and everyone for everything. आज के इस समय में, कोरोना के समय में, कई लोगों के सर पे छत नहीं है, खाने की दिक्कत है ना? फैमिली अफेक्टेड है. सो वी शुड थैंक गॉड कि वी आर देयर, वी आर एट अ सेफर साइड. हमारे पास छत है. अपनी छत को डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. वी शुड थैंक गॉड फॉर दैट. अपने जो प्लेट पे खाना आ रहा है उसके लिए वी शुड थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग, isn't it? And we should thank our family members also for making us feel so cherished, making us feel so loved, making us feel so blessed, and especially your parents. And कहते हैं ना कि a grateful heart is a magnet for miracles. If you want miracle in your life, then believe me, my friends, you should have gratitude. You should have a grateful heart. You should be thanking. कभी शिकायत नहीं करो जिंदगी में. थैंक करते रहो सभी को, है ना? पेड़ को थैंक यू करो ऑक्सीजन के लिए, ठीक है? सभी को थैंक यू बोलते रहो. These are some of the tips for making you feel confident from inside and from outside. These are the points. These are the points which will make us feel confident. We have with us Priya. She was with you since morning. I'm inviting her again to share some of her points for making you confident, for giving you tips, like your tips on mannerism, tips on body language. Welcome back, Priya, again. Thank you so much, ma'am. Just I'll be sharing my screen with you all. Thank you so much, ma'am, for the wonderful presentation. I agree with you. Can you see my screen, ma'am? Yes, Priya. Yes, thank you. Ma'am, whatever you said, I agree with you completely. Reading habits, spending less time on screen, gratitude, these are the things which actually make our personality. These are the things जो एक effect create करता है सामने वाले पे. This makes a good personality. Now a question comes up, what exactly is personality? Personality होती क्या है? So let's understand it this way.
पर्सनालिटी इज लाइक आइसिंग ऑन अ केक। कुछ सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर मान लीजिए आपको एक अच्छी सी टेस्टी सी दाल बनानी है, तो आप मार्केट जाते हैं, वहां पे आपने एक हाई प्रोटीन और सारे न्यूट्रिएंट्स वाली अच्छी सी दाल ले ली। वो दाल आप घर में आए, उसे पकाया, फिर उसको और टेस्टी बनाने के लिए उसमें तड़का भी लगा दिया, बट उसमें आपने नमक नहीं डाला। सो विदाउट सॉल्ट व्हाट डू यू फील? विल दैट दाल टेस्ट वेल? क्या वो आपको टेस्टी लगेगी? नहीं लगेगी ना। वो दाल आप पे वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगी जो आप बनाना, आप जो चाहते थे उससे, वो नहीं कर पाएगी। Similarly, without a good personality, हम भी अगर वो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। पर्सनालिटी सिंपल सी भाषा में अगर समझे तो वो नमक का काम करती है हमारी ग्रोथ को इन्हांस करने के लिए। तो अगर हमारे पास बहुत सारी एकेडमिक अचीवमेंट्स है, बहुत ज़्यादा हमने क्वालिफिकेशन गैदर की है, हमारे पास बहुत डिग्री है, सिर्फ डिग्री ही क्यों, हमारे पास कई सालों का एक्सपीरियंस है, और हमें ये नहीं पता कि हमें अपने आप को कैरी कैसे करना है, अपना बिहेवियर क्या होना चाहिए, हमारे पास एक अच्छी पर्सनालिटी नहीं है, तो क्या हम वो इफेक्ट क्रिएट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये मैम क्या बोल रही हैं, इसका मतलब तो पढ़ना लिखना सब बेकार है, आज से ही पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं। आई डिडंट मीन कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है या डिग्री जरूरी नहीं है, और एक्सपीरियंस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें ही तो हमें एक अच्छी सोच, एक अच्छा आउटलुक देती है। ये बिल्कुल दाल के उस न्यूट्रिएंट्स की तरह है जिसकी वैल्यू को आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छी पर्सनालिटी के बिना हम वो इफेक्ट नहीं क्रिएट कर पाते, बिल्कुल उस सॉल्ट की तरह। इसको कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन कीजिए अगर आपको इंटरव्यू के लिए दो लोग जाते हैं, दोनों इक्वली क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छे से बहुत इक्वली क्वालिफाइड हैं, और एक जाके बिल्कुल इस तरह से खड़ा हो जाए, उसके बात करने का स्टाइल, उसके चेहरे पे स्माइल ना हो, तो क्या वो बंदा इंटरव्यूअर को अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं ना। सो क्वालिफिकेशन होते हुए भी अगर हमारे पास एक अच्छी पर्सनालिटी नहीं है, वी डोंट हैव that aura in ourselves, that good personality, good vibe in ourselves, then we won't be able to create that effect जो हम लोग सब चाहते हैं। ओके, सो चलिए अब आप सब जल्दी से एक टास्क कीजिए। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आपको सोचना है और नीचे जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें लिखिएगा, ठीक है? जब आप किसी इंसान से मिलते हैं, when you come across a person, then what is the first thing that lays an impression on you? क्या चीज होती है जो आप पे एक अच्छा असर डालती है, इम्पैक्ट डालती है? चलिए चलिए जल्दी से सोचिए, और आई होप आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो, मैं देख तो नहीं पा रही लेकिन लिखिएगा जरूर। क्या चीज होती है? कुछ लोगों ने जरूर सोचा होगा कि अगर एक इंसान बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुंदर हो, बहुत हैंडसम हो, तो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगा, सबसे पहला इंप्रेशन वो देता है। ये एक्चुअली मैं पूरी तरह से डिनाई नहीं करूँ, ये पूरी तरह से गलत नहीं है, बट खूबसूरती बहुत टेम्पररी चीज है, वो एक लास्टिंग इम्पैक्ट कभी भी क्रिएट नहीं कर सकती है। सो एक्चुअली क्या फैक्टर्स होते हैं जो एक लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं और जो पहला इंप्रेशन क्रिएट करते हैं? दैट इज बॉडी लैंग्वेज। सो टुडे मैं आज डिस्कस करूंगी आपके साथ एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनालिटी, यानी कि बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस एंड वॉकिंग स्टाइल। ऑलराइट,
So let's begin. I hope आपके दिमाग में कोई questions नहीं आ रहे हो. मैंने आपके सारे doubts clear करने की पूरी कोशिश की थी. But still अगर आपके मन में कोई question आ रहे हो, तो please comment box में जरूर लिखिएगा. I'll try to answer in my next session. In fact, I'll surely answer in my next session. All right. If you are liking this, do share it with your friends. So body language. Body language क्या होता है? चलिए हम लोग फिर एक कुछ इमेजिन करते हैं. ठीक है. दो लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं. ठीक. दो बच्चे, दो बड़े, किसी भी एज ग्रुप के लोग किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं. और उसमें से एक बंदा, one person just gets up and when he has to walk in the room, एकदम अक्षय कुमार style, you know, that funky वाला style, in that way he enters the room, एकदम funky style में, और आगे एक के ऊपर एक पैर चढ़ाकर with his cross feet इंटरव्यूअर के सामने बैठ जाता है, सर ऊपर करके. तो और एक दूसरा बंदा होता है जो उसके साथ another person comes over there who enters very elegantly with his back straight, ekdam decently, with a bright smile, a soft smile on his face, enters and sits after taking permission. Then आपको क्या लगता है कौन इंटरव्यूअर को ज्यादा इम्प्रेस कर पाएगा? यहाँ सिलेक्शन या रिजेक्शन का इशू नहीं है, यहाँ तो हमें एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है. तो किसके लिए हमारे इंटरव्यूअर क्या ओपिनियन रखेंगे बताइए आप? क्या वो अक्षय कुमार वाला फंकी स्टाइल वाला बंदे का अच्छा इंप्रेशन होगा? नहीं. What will come in the minds of the interviewer? मैं आपको बताती हूँ. इंटरव्यूअर सोचेंगे कि this person is very casual. He is not arrogant and casual. He is not at all interested in the job. बस ऐसे ही टाइम पास के लिए उठकर आ गया. जबकि जो बंदा डिसेंट था, एक ब्राइट स्माइल के लिए आया, सिक के साथ आया था, उसके लिए एक पॉजिटिव, उसके पॉजिटिव ऑरा से वो इम्प्रेस जरूर होंगे. बाद में बेशक उसके नॉलेज के बेसिस पर ही वो सेलेक्ट हो, बट एक फर्स्ट इंप्रेशन तो पॉजिटिव हो ही जाएगा. सो आई होप आप समझ रहे होंगे कि बॉडी लैंग्वेज कितना स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है. और हम लोग अपने जेस्चर्स, अपने हैंड मूवमेंट्स, जिस तरीके से हम खड़े हैं, हमारा पोस्चर, हमारे हेड की पोजीशन, आई कांटेक्ट, इन सब चीजों से हम लोग कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं. यही तो है बॉडी लैंग्वेज. Very knowledgeable people have said that body language actually speaks 70% things. Difficult to believe, na? But actually we communicate. 70% of our communication is done through body language. So it is very essential to have a body language. Okay, so let's see some of the tips of having a good body language. कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो जल्दी जल्दी लिखिएगा. ओके, सो ये वो इंटरव्यू वाले एग्जाम्पल से और दाल के एग्जाम्पल से आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि एक पुअर बॉडी लैंग्वेज आपको कितना नेगेटिव बना देता है. और क्वेश्चन, योर सिलेक्शन एंड रिजेक्शन is at stake actually. Even with great achievements, it comes at stake. हम उसको रिस्क में डाल देते हैं अगर हमारे पास एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज नहीं. तो ये तो है पुअर बॉडी लैंग्वेज का कॉन्सिक्वेंस. What is the consequence of having a good, a positive body language? कैसे? It makes us confident, attractive and respected. बिल्कुल उस दूसरे कैंडिडेट की तरह. और रिस्पेक्टेड, बिल्कुल सही सुना आपने. अगर आपके पास एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज है तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा अच्छा पड़ेगा. इनफैक्ट वो एक लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और लोगों के मन में आपके लिए, अगर आपसे बात नहीं भी की तो आपके लिए एक नेचुरल रिस्पेक्ट आएगा. सो हाउ इम्पोर्टेंट इज टू हैव अ गुड बॉडी लैंग्वेज. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सबसे पहला एस्पेक्ट दैट आई वांट टू डिस्कस विथ यू इज हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए. खड़े होते समय
हमारे कंधे किस तरफ होने चाहिए? आपको क्या लगता है, हम एक ऐसे ढीला ढाला सा, या विथ योर बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, क्या ज्यादा अच्छा लगता है? मैं जानती हूँ आप सबका आंसर होगा विथ योर बैक स्ट्रेट एंड शोल्डर स्ट्रेट, क्योंकि क्या होता है कि जब एक थका हारा सा इंसान, झुका हुआ इंसान हो, ढंग से चल नहीं रहा हो, तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि उस इंसान में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है. दैट पर्सन इज वेरी इनसिक्योर या डरा हुआ है. पता है, इंटरव्यूज जो होते हैं ना, दे ऑब्जर्व यू थ्रू कैमरा. एक ऑब्जर्वेशन टीम होती है जब आप बाहर इंटरव्यू ले रहे हो. इनफैक्ट स्टूडेंट्स जब कंपटीशन के लिए जाते हैं ना, तो जजेस आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आप किस तरीके से खड़े हैं. और जब आप ऐसे झुककर खड़े होते हैं ना, या बहुत इस तरह से खड़े होते हैं, तो उनको पता चल जाता है. दे कम टू नो दैट यू आर वेरी स्केयर्ड. और कॉन्फिडेंस के मार्क्स तो कट जाते होंगे ना स्टूडेंट्स. तो कैसे खड़ा होना चाहिए हमें विथ अ बैक स्ट्रेट? अब चलो इसको भी थोड़ा क्लियर करते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. इमेजिन करो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स मेरा ये सेशन जरूर देख रहे होंगे. सो इमेजिन करो स्टूडेंट्स, अगर एक टीचर आपके क्लास में आता है बिल्कुल इस तरह से चलता हुआ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. और वहीं एक दूसरा टीचर आपके क्लास में आता है बिल्कुल बैक स्ट्रेट, फेस स्ट्रेट, विद अ स्माइलिंग फेस, आकर बोलता है हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो आपको ज्यादा अच्छा क्या लगता है? पहले वाले केस में अगर ऐसे हमारे बच्चे टीचर आते हैं तो पूरे के पूरा क्लास ही नेगेटिव हो जाता है. नहीं, मन नहीं करता होगा पढ़ने का. जबकि जब टीचर आके इतनी वाइब्रेंसी के साथ बोलता है विद ग्रेट वाइब्रेंस, तो हम भी दैट कॉन्फिडेंस इज रेडिएटेड. अभी मैम ने रेडियंस की बात की थी, दैट ऑरा. सो दैट कॉन्फिडेंस इज रेडिएटेड. और बच्चे भी, हमारे सामने वाले भी उसको रेसिप्रोकेट करते हैं. वैसे ही उनकी भी बॉडी लैंग्वेज हो जाती है. चलो अब आगे चलते हैं. हम लोग हेड पोजीशन के बारे में बात करते हैं, वो भी बहुत जरूरी है. अब आप सोचिए, एक इंसान, अगर आप न्यू स्कूल में एडमिशन लिया है आपने, या अगर आप एक कॉलेज के नए स्टूडेंट हैं, आप अपने कॉलेज के पहले दिन क्लास में जाते हैं, वहां पे ऑब्वियसली आपके मन में भी ये इच्छा होगी, इवन यू विल विश टू मेक फ्रेंड्स, and the other students who are sitting in class would also must be having the desire to make friends. It's obvious, isn't it? When we go to a college, new school, we are excited to make friends. और उसमें एक आप क्या करते हैं, एक स्माइल शेयर करने की कोशिश करते हैं, राइट? आप एक इंसान को देखकर, एक अपने क्लास फेलो को देखकर, यू गिव अ स्माइल, ओके, और बदले में वो बंदा अकड़ के चलता हुआ इस तरीके से चला जाता है. ओह, क्या लगता है आपको? इतना आपको कैसा फील कर रहे हैं आपके बारे में? आपके मन में आता है कि ओह ही इज सो एरोगेंट. तो क्या आप उससे दोस्ती करने जाएंगे? नहीं ना, आप तो बोलेंगे ये बहुत एरोगेंट है, क्या मुझे बेवकूफ समझता है क्या? यही दिमाग में आएगा ना, बिल्कुल यही आएगा. आपकी जगह कोई भी होगा तो यही सोचेगा. जबकि और एक दूसरा इंसान हो जिससे आप कितना भी बोल रहे हो, स्माइल शेयर करने की कोशिश कर रहे हो, वो तो लॉस्ट ही हो, एकदम शाई सा हो. तो दोनों ही तरीका सही नहीं है. तो क्या होना चाहिए? हेड का अलाइनमेंट और उसका रोल क्या होता है, चलिए समझते हैं. हेड को स्ट्रेट अलाइन रखना चाहिए. अब इसका क्या मतलब है? इफ योर हाइट इज 6 feet और यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन ऑफ 5 feet हाइट, तो आप क्या हेड अलाइन स्ट्रेट रखेंगे? देन यू डोंट से दैट अच्छा वो प्रिया मैम ने बोला था कि हेड तो स्ट्रेट रखना है तो मैंने रखा, क्या गलत कर दिया? ये मत बोलिएगा. तो मैं क्लियर कर देती हूँ, आई डोंट मीन बाय कीपिंग योर हेड स्ट्रेट कि आप इफ यू आर वेरी टॉल देन यू कांट लुक डाउन टू द, you can't look at the person who is shorter than your height. That will not make you a very submissive and a shy kind of person. Not at all. And vice versa also.
I just mean be normal, be confident, and look into the eyes of the person. That is what I mean by saying head aligned. I hope आपको समझ आ गया हो. Still कोई doubt हो तो please comment जरूर कीजिएगा. Okay, now let's come to another important aspect of body language. हमारे hand और arms का movement. The movement of hands and arms is very important. क्या अच्छा लगता है आपको जब आप किसी इंसान को ऑब्जर्व करते हैं जो कि आपके सामने आकर कुछ इस तरह से खड़ा हो, आपको आई होप मेरा हाथ दिख रहा हो, या इस तरह से बैठा हुआ हो, या पॉकेट में हाथ डालकर. See, this pocket, keeping your hands in the pocket is very awkward for any occasion, any place. But जब बिल्कुल enclosed हो, पैर चिपका कर खड़ा हो, तो what do you feel? What will come to your mind? It clearly projects your nervousness. Clearly. This is known as body language experts की language में बोले तो these are closed body language signs, which shows clearly, बिल्कुल साफ, you cannot hide, you are very nervous. Jabki when you leave your body free, when you let your hands do the talking part and let your smile, let your eyes do the talking part, your hands just relax on the sides of the body, and same with your feet and other body parts. Then the person will automatically get to know you are confident. So what should we do if we are not having a right movement, body movement, and a straight posture or something? Don't give up. ये मत सोचिए कि हम कभी भी एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप ही नहीं कर सकते. बिल्कुल कर सकते हैं हम एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप. पोस्चर करेक्ट करना है, go and stand against a wall. For some time, believe me, it works. For some time, बिल्कुल अपने feet को you touch, bring it close to the wall, keep your head straight, and then walk away with it like that. For a few days, you need to work on it. You need to work on your hand movements, arms, and everything. But yes, you will be able to develop the desired body language. That's the positive thing. Okay, and never do that. Never keep your body language close. If by now कुछ viewers अगर ऐसे बैठे होंगे, means they are not at all interested in my conversation. They are cutting me off. If you are sitting like this in a seminar or in a workshop, it clearly shows, speaker को पता चल जाता है कि आपको तो उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट ही, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट. पीछे ऐसे होके आराम से चेयर पे बैठे, interviewer knows, yeah, this person is not interested, waiting for the workshop to be over. So how can we do that? Firstly, let your hands do the talking. Head or posture I have already talked about. Don't keep it closed. For God's sake. Interview के लिए जाते हैं तो कितनों की आदत होती है ना, हम लोग डर के ऐसे, we sit like this. Many people though, they have a habit of nail biting. Some girls start playing with their hair, fidgeting with pen. ये सब क्या है? ये closed body language. At times while I am talking, this is not a closed body language because I'm letting my hands talk freely to you. अब imagine कीजिए मैं एकदम ऐसी खड़ी हो जाऊं स्टैचू की तरह, कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, isn't it? So अपने hand को, अपने gestures को freely move करने दीजिए. अब don't overdo it. जरूरत से ज्यादा भी मत कीजिएगा कि बिल्कुल ऐसे 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 करना शुरू कर दिया तो सामने वाले को तो कुछ समझ ही नहीं आएगा. उसका पूरा ध्यान तो आपकी बातों से हटकर आपके हाथ के मूवमेंट पे ही चला जाएगा. Be normal. Again, the same rule applies. Be normal. Be yourself. But ये bind करके रखना is very wrong. Don't be free. Be free. If you want to gain success, let your body be free. Okay. आपने पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया है या नहीं, लेकिन हमारे
फीट का और हमारे टोज की पोजीशन भी बहुत कुछ बताती है। अब फिर एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, जब कोई मम्मी पापा से बच्चों से पूछ रही हूँ मैं, जब मम्मी पापा कभी ना कभी तो आपकी पिटाई हुई होगी, तो जब मम्मी पापा आपकी पिटाई करते हैं, then what do? You try to shrink yourself, isn't it? You try to do like this, even you shrink your feet. So what are you exactly doing? क्या कर रहे हो? सोचा है कभी? By closing your body, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो. So what does it mean? A closed body language मतलब lack of confidence. हम लोग that shows our fear, our nervousness. हम लोग कितने प्रोटेक्टिव हो रहे हैं कि सामने वाले से तो बात ही नहीं कर पा रहे. So again, अपने बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखिए, रिलैक्स्ड, calm और कॉन्फिडेंट रहिए. Even experts can tell you with the position of your toe and your feet that how do you feel? What is your exact state of mind? बता सकते हैं वो लोग? विश्वास नहीं हो रहा? आप खुद ही ऑब्जर्व करके देखिए. अननोइंगली आप भी ऑब्जर्व करते हैं. इवन यू आर ऑब्जर्विंग. आप पे भी तो उसी तरह का इंप्रेशन पड़ता है, जैसे आप कॉलेज स्टूडेंट हो या कुछ भी. अभी बताया ना मैंने, जैसे आप एक एरोगेंट इंसान के पास बातें करने नहीं जाइएगा, सेम वे. तो चलिए, फीट का पोजीशन क्या होना चाहिए? लेग का. कईयों की आदत होती है, मैंने देखा है कि बिल्कुल अपनी दोनों टांगों को दे स्प्रेड देयर फीट, मतलब कीप अ गैप ऑफ अराउंड 2 feet while they are standing, and that too with hands in their pocket or around their waist. It's very awkward. No matter whoever sees you, believe me, they will not have a positive impact. No matter you are having triple PhDs, you are foreign returned with the best universities in the world, nothing will work. Your first impression will always be negative. And it's a very popular saying, na? First impression is the last impression. So, feet ke beech mein actually the distance should be, what is the distance between your both shoulders? So that is the perfect distance. If I say कि around 1 feet, तो 5 feet, जो जिसकी हाइट 5 feet हो उसके लिए तो ये सही नहीं है, और जो 6 feet है उसके लिए काफी क्लोज होगी. Then it would be a closed body language. तो अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली, because with your shoulder width, you can decide. कुछ दिन इंटेंशनली कीजिए, जानबूझकर कीजिए. Gradually, you will inculcate in that body language in yourself. ठीक है? और जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो पता है आपके टोज जो होंगे ना, वो ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ होंगे. The outward direction of toes is a sign of open body language, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी होती है. आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा हो. कोई क्वेश्चंस दिमाग में अगर आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपको जरूर उसका रिप्लाई करेंगे. अब चलिए, आपको यह स्क्रीन तो दिखाई दे ही रहा होगा. ड्रेसअप से व्हाट कम्स टू योर माइंड? ड्रेसअप को देखकर आपके दिमाग में क्या आता है? कि ये लोग किसी इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं, राइट? 2 men and 2 women. Okay, they are dressed up in a formal attire very nicely. Can you see the position of their feet? दोनों के फीट के पोजीशन, चारों के फीट के पोजीशन को देखिए. 2 men, one with some distance, some gap between his legs while sitting, and another cross legs, right? And women standing properly with both normal feet, no distance between their feet. See, if you talk about that while sitting position, what should be the position of feet? It slightly varies while standing also from men to women. ठीक है? अगर ये हमारी सोसाइटी का में एस्टैब्लिश फैक्ट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ. घर में तो हम लोग कैसे भी फ्री स्टाइल रह ही सकते हैं, लेकिन जब आप बाहर जा रहे हैं तो यू आर ट्राइंग टू
create a effect. You're trying to attract people towards you, है ना? एक magnetic personality सब चाहते हैं बनना. So क्या जो इंटरव्यूअर आपको देख रहा है या जो दूसरे कैंडिडेट है, समझ नहीं आता कौन डरा हुआ है और कौन कॉन्फिडेंट है? क्लियरली ना कोई भी बता सकता है that the person with the closed body language means crossed feet is not confident, whereas the person sitting with normal gap in the feet, उसमें वो confidence है, right? थोड़ी बहुत nervousness तो सब में होती है, but at least he's confident enough to let his body be free. हाँ, दोनों ही girls काफी ठीक है, but फिर उनकी upper body पे अगर आए तो the girl in black coat थोड़ी सी cautious है, हल्की सी झुकी हुई. She is slightly less in confidence than the other one. अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, for men, for boys, cross legs मत बैठिएगा please. Don't sit cross legs in a party हो, semi informal occasion हो, या formal occasion में तो never do this. Never sit cross legs. Cross leg is somewhat acceptable for women in informal occasions. Otherwise, the man in blue shirt is actually having a good body language, and the woman in gray trousers and white shirt in the picture that you can see is having a good body language. She's giving a positive and confident vibe. Like Amrita ma'am said while she was talking, the सबसे important ingredient होता है, the most important thing of your external personality is your smile. It shows your inner you. ठीक है, जब आप ASL बच्चे जाते होंगे listening skill का इंटरव्यू देने या स्कूल में कॉलेज में सिलेक्शन के लिए, when you go, you might have seen a person in एक बंदा होता है जो जाता है अपने बॉस से मिलने या बॉस से मिलने भी. So a person is talking and having a slight pleasant smile on the face. So इंटरव्यूअर के मन में, बॉस के मन में पता है क्या चलता है? Genuine guy. Even if अगर मैं कुछ गलत बोलूं, वो बोल देगा या बोल देगी. This person is genuine. He has a confidence. Smile makes a difference. Smile ही तो main magnetic factor होता है. और जब आप किसी से close आते हैं, when you step closer to the person and enter into a conversation, सबसे पहला impression, how do you break ice with a person? कैसे? एक smile से. अपने college friend को हल्की सी smile दी, 90% डिस्टेंस तो आपने कवर कर लिया, बाकी 10% पे आपको वर्क करना है ना? एंड याद करके देखिए एग्जाम के दिनों में जब आप इंटरव्यू में इंटर करते हैं, सो इफ यू हैव अ वेरी बिग स्माइल, इफ यू आर नर्वस, अननोइंगली हमारी सिर्फ एक बड़ी वाली स्माइल, एकदम पूरे दांत दिखा रहे होते हैं, दैट बिकम्स वेरी फेक, बहुत फेक हो जाता है. वो नर्वसनेस का साइन होता है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रेंड कर रहे हैं और उसमें आप अगर अच्छे से हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, even if you are laughing out loud, it's the sign of nervousness. इतना स्ट्रिक्ट, इतना लोड लेके मत चलिएगा प्लीज. ठीक है, तो गो विद द फ्लो. आप जहां है उसके हिसाब से स्माइल कीजिए. ये सोचेंगे कि अरे मैम ने तो बोला था ना कि भाई इतनी बड़ी वाली स्माइल नहीं करनी है, अब तो हो गया. So go with the flow and have a natural smile on your face, है ना? So I hope आपको क्लियर हो गया हो हमारे पोस्चर क्या होना चाहिए या हमारी बॉडी लैंग्वेज में स्माइल का क्या रोल है, सब कुछ. एक चीज आपने जरूर सोची होगी कि मैम तो बहुत बोल रही है कि एकदम हेड स्ट्रेट होना चाहिए, अलाइंड होना चाहिए, और खुद तो सुबह से
जब आ रही हैं तो नीचे ही देख रही होती हैं. प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस, बट ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं आपके कमेंट्स पे रिप्लाई करूं. अरे मेरी एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा है. दैट इज व्हाई आई एम बाउंड टू रीड योर कमेंट्स. That doesn't mean I have any intention of showing a negative sign to you. I hope you understand. I told you the right way of keeping your head is be normal. Go with the flow. Now I think the time is ending. It is a time for ending this session. But I have to talk a lot more about body language, since the time is almost ending. So we'll be talking more about a good body language in my upcoming sessions. So Amrita ma'am, what do you feel? A body language has an important role to play or not? Yes, definitely. And thank you, Priya. You enlightened us so much. And we will all try to remember whatever you said in our day-to-day life. Because, you know, our personality and our skill are what makes us winner in these challenging times, isn't it? In this competitive world. So thank you, Priya. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Yes, Amrita, it is highly required. Yes, ma'am. Because if anybody wanted to tell that about somebody's comment, that's all depend upon personality. It's not depend upon the economic or whatever the money they have or richness. Richness is no value at all. When you are a person, personality is most important thing. And our kids in the day-to-day in this life, you can say the pandemic time, they need it because they lost all those connections. They are not touched with the school. They are not systematic. They are not, you can say, regularity. They forget time management, everything they forget. Now it is really required. The parents should pay more attention on it. What will happen? Now you see that 2 years, almost this year also, it's half of the years gone. The students are at home only, and their body posture also they lost because they are not sitting properly. They are most of the time they were maybe on the bed and they were bent and they were learning, and that's create a posture problem also, because these all the things will affect their personality. So please, next sessions, you people pay attention on that, because how it's well, because they don't know how to walk even. They'll forget about it because Exactly. they bend it and the bend. Very important. So these are the points, because our kids are really the asset of the world. Yes. Society. Yes. And tomorrow's we are the one who are lucky enough that we are getting an opportunity to train them, to mold them. And yes. You can say that after God, we are the really God, we are giving the best chance. We may not have the much money, but we have that we have got the ability to create and mold the young yes. generation. And they will tomorrow's engineers and yes, tomorrow's yes. Tomorrow's engineers or the doctors or DM or whatever, it's be created, be the teachers, and we will proud of it. And let's do something more to them, and let us work hard so that our next generation can be the best one, and they will be the asset of the society. And Amanda, it was a really wonderful session, and we are so happy that next session will come up with a more, you can say, yes. points, and students may feel now, because I am noticing that they feel that what is it? They are not knowing the value of this. Yes. Once at 10 time they'll reach, when they face the interviews and all, then they will feel that what's wrong with me? I have got the degree, I'm the topper of the classroom, and I got all the degrees, I'm qualified, then why I'm rejected? Because of these all the reasons. So thank you very much. And Priya, thank you very much. It was really a wonderful sessions with the PowerPoint presentation and all. Thank you once again. And the viewers, thank you. Because once again, I request with the folded hands to each and everyone. Please join tomorrow at 7 o'clock. Take little pain for 7 days. Parents, please, for the betterment of the child, you need to take a little pain. The 7 days won't come back. You know that time is gone, it's gone.
bygone is bygone. This proverb, time is gone means gone. It won't get back. So yet let's take this opportunity, utilize Yes. them properly. And this is, you are getting a training without any, you can say, monetary help, or your monetary charge is there. So without spending, you are getting a 7 days training. So I hope it is really an opportunity. It's not because we are conducting, that's why telling, I'm standing on your side and thinking and understanding the value of it. That's why I'm telling. Thank you once again. Over to Priya. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Now, आप सबको बहुत बहुत thank you. Whole day you were with us. और आपने सेशन में जरूर पार्टिसिपेट किया होगा. अब कल के बारे में भी कुछ बता दूं. कल भी इतना ही, इससे भी ज्यादा हमारी तो पूरी कोशिश रहेगी कि इससे भी अच्छा सेशन, अच्छे से अच्छा हम लोग प्रेजेंट करें. और बहुत सारी मम्मियां और बहुत सारे बच्चे और हर कोई वेट कर रहा है कि कल कौन सी टेस्टी डिश आने वाली है. So चलिए मैं बता दूं again, कल tomorrow again the last session would be of cookery classes. Again, kids, you will get a chance to ask your mama to prepare all that Rita ma'am will tell you, and all the dance, music, art and craft, every session you will be having tomorrow. And firstly, do join in the yoga session itself. We'll begin the day sharp at 7 with the prayer. So see you tomorrow. Thank you.